Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكن بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المعتق في القربى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے بتوالوں شمع سرت کے پروانوں غوث اعظم کے دیوانوں اولیاء کرام کے ماننے والوں میری ملت کے نوجوانوں، آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے اوقات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گہرگاہ میں برابر و درود اللہم صلی کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے، اس نواسی پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. کیوں تو لاکھوں سجدہ کیے مخلوق نے مگر حسین نے ایسا سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. حسین نے ایسا سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. معزز سامعین کرام، آپ تمامی حضرات کو اس بات کا باخوب علم ہے کہ آج ہم میربستی کے جامع مسجد کے چھت کے نیچے اکٹھا کیوں ہوئے ہیں، ان کا منشا آرزو تمنا کیا ہے. آج مغرب سے کال مغرب تک یعنی 10ویں محرم الحرام جسے ہم عاشورہ کے رات سے جانتے اور پہچانتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، یوں تو آپ بہت تقریریں سن چکے ہیں اور میں بھی تقریر کرنا چاہتا نہیں ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ، صرف 2 نعتیں پڑھ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کربلا کے نام پر ہمارے جامع مسجد میں میلاد شریف کا پروگرام رکھا گیا ہے. لیکن ہم کتنا بد نصیب ہے عزیزان ملت اسلامیہ کہ ابھی ہم گھوم رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، جانتے ہیں نہیں ہو سکتے. عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا سا آگے تھوڑا سا آگے آ جائیے، آپ سب آ جائے گا. فاتحہ کا ٹائم ہے نا، اب فرصت نہیں ملے گا. آگے آ جائیے، تھوڑا سا آگے آ جائیے. ایسے سہانا جگہ پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آگے آ جائیے، تھوڑا آگے آ جائیے، تھوڑا آگے آ جائیے، مہربانی کیجیے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، نماز ہوئے نار تو نماز نیلی نا کبو سبحان اللہ. نماز نیلی نا کبو، نماز ہوئے نار تو مطلب نماز نہیں ہوئی ہے. اب کیا کارن ہے، کیا منشا ہے، کیوں نہیں ہے، اسی کو شعر کہتے ہیں. نماز ہوئے نار تو نماز نیلی نا کبو، ও তুই ধরি নামাজ পড়িলি নামাজ সারা জীবন ভর, নামাজে হইল না রে তোর নামাজের নিলি না খবর, নামাজে হইল না রে তোর নামাজের নিলি না খবর. আজান শুনে সবার আগে মসজিদেতে যাও, আজান শুনে সবার আগে মসজিদেতে যাও, নামাজ শেষে বাইরে এসে সুদের টাকা খাও, নামাজ হইল না রে তোর নামাজের দিলি না খবর.
खाने के लिए हम सूद का रुपया खाना शुरू कर दिए। उसी को शेर कहते हैं नामाज হইল না রে তোর নামাজের নীলি না খবর নামাজ হইল না রে তোর নামাজের নীলি না খবর ও তুই ধরলি নামাজ পড়লি নামাজ সারা জীবন ভর নামাজ হইল না রে তোর নামাজের নীলি না খবর আগে শুনে সবার আগে মসজিদে যাও নামাজ শেষে বাইরে এসে সুদের টাকা খাও নামাজ হইল না রে তোর নামাজের নীলি না খবর জোরে বলে সুবহানাল্লাহ और कस के बोले सुबहानाल्लाह नामाज হইল না রে তোর নামাজের নীলি না খবর आओ पोशाक से नहीं काम चलता शेवला भाई পায়জামা পাঞ্জাবি টুপি সবই তোমার সাদা পায়জামা পাঞ্জাবি টুপি সবই তোমার সাদা তিল পরিমাণ দিলের মধ্যে থাকে যদি কাদা নামাজ হইল না রে তোর নামাজের নীলি না খবর कादा से मना जानते हैं ना कादा से मना कीना है बुग़्ज़ है हसद है उसी को जो है कादा से तशबीह दिया है उसी को शेर कहते हैं सर पायजामा पंजाबी टोपी तुम्हार सादा टोपी पायजामा पंजाबी टोपी सभी तुम्हार सादा तिल পরিমাণ দিলের মধ্যে থাকে যদি কাদা নামাজ হইল না রে তোর নামাজের নীলি না খবর নামাজ হইল না রে তোর নামাজের নীলি না খবর ও তুই ধরলি নামাজ পড়লি নামাজ সারা জীবন ভর নামাজ হইল না রে তোর নামাজের নীলি না খবর বাজে সামনে कहा नमाज कबूल करने के लिए दिल को भी पाक करना पड़ेगा हाथ को भी पाक करना पड़ेगा पैर को भी पाक करना पड़ेगा जिसमें के तमाम पार्ट्स को पाक करना पड़ेगा तब जाकर के नमाजी की नमाज कबूल होगी अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया मैंने आयत करीमा तिलावत की है कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मुअद्दता फिल कुर्बा मेरे आका फरमाते हैं रब तबारक व तआला अपने महबूब पाक साहिब लौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कहता है महबूब तुम फरमा दो कि मेरे वजह से तुम्हें जन्नत मिली है जहन्नम मिली है आसमान मिला है जमीन मिली है खेत मिला है खलियान मिला है पेड़ मिला है हाथ मिला है पैर मिला है आंख मिली है सारे वजूद मिला है मेरे सदक़े मेरे महबूब तुम फरमा दो इसका मैं बेनिफिट नहीं मांगता इसका उज्र नहीं मांगता इसका तलब नहीं इसका जो है मुआवजा नहीं मांगता फकत कुराबत की मोहब्बत अहले बैत की मोहब्बत है इमाम हसन की मोहब्बत अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया इससे पता चला मालूम हुआ हमें इमाम हुसैन से मोहब्बत करना पड़ेगा इमाम हुसैन से प्यार करना पड़ेगा कौन इमाम हुसैन इसका मर्तबा क्या है जानते में छोटा सा वाक़या कहकर गुफ्तगू को समेटना चाहता हूँ 8:26 हो चुका हमारी जमात का टाइम भी होने वाला है अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया कितना सुहाना टाइम है कितना सुहाना वक्त है कितना पुरखैर वक्त है कि कल इमाम हुसैन करबला की इस तस्मीन पर अपने लश्ते जिगर हजरत अली अकबर हजरत अली अस्कर हजरत उल मोहम्मद हजरत कासिम एक के बाद दिगरे 72 नफूस खुदसा को शहीद कर दिया गया है जानते हैं उस हुसैन को जो रब की बारगाह में ये पावर है ये अथॉरिटी है अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया इमाम हसन हुसैन है बचपन का ज़माना है लड़कपन का ज़माना है खेलने कूदने का ज़माना है खेलने कूदने का टाइम है इमाम हुसैन और इमाम हसन बचपन के ज़माने में क्या करते हैं दो सिलेट लेते हैं लेने के बाद हैंड राइटिंग सुधार रहे हैं अल्लाहु अकबर दो भाई दो तरफ बैठे हुए हैं एक लिख रहे हैं दूसरा भी लिख रहे हैं लिखते लिखते भाइयों में थोड़ा तनाव हो जाते हैं इमाम हुसैन कहते भाई हसन मेरी तहरीर सही है इमाम हसन कहते नहीं नहीं मेरी तहरीर सही है दोनों में बातें पड़ जाती है तो दोनों भाइयों ने फैसला किया कि ये फैसला हम नहीं करेंगे चलते अपने बाप अली मुर्तजा शेर खुदा हैदर कर्रास के पास चलते हैं हजरत अली की बारगाह में जाते हैं आपको जान बताइए तो सही हमने तख्त लिखी है हमने चिट्ठी लिखी है हमने लेटर लिखे हैं बताइए तो सही किसकी तहरीर सही है इमाम हुसैन के वालिद गरामी अली मुर्तजा खामोश हो जाते हैं मैं किसके हक में फैसला दूं अगर इमाम हुसैन के हक में फैसला देता हूं इमाम हसन नाराज हो जाएंगे इमाम हसन के हक में फैसला देता हूं इमाम हुसैन नाराज हो जाएंगे हजरत अली सोचने पर मजबूर है करो तो करो क्या हजरत अली कहते हैं ए मेरे बेटे ए मेरे कलीजा का टुकड़ा
सकता, इसका फैसला मैं नहीं दे सकता, इसका फैसला तुम्हारे नाना जान नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देंगे। दोनों भाई हंसते खेलते नाना की बारगाह में जाते हैं। ए नाना जान बताइए तो सही, हम दोनों ने खत लिखे हैं, दोनों ने लेटर लिखे हैं, दोनों ने तख्ती लिखे हैं, बताइए किसकी तहरीर सही है, इमाम हसन की तहरीर सही है या मेरी तहरीर सही है। हजरत हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजुब में पड़ गए, किसके हक में फैसला दे, किनके हैंडराइटिंग को अच्छा कहे, किनका बेहतर कहे, अब भी कश्मकश में पड़ गए। हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फैसला नहीं दे सके, कहा तुम्हारी माँ के पास चले जाओ, फातिमा के पास चले जाओ, मेरी बेटी के पास चले जाओ। अल्लाहु अकबर। दोनों शहजादे फातिमा की बारगाह में जाते हैं। अम्मी जान बताइए तो सही किसकी तहरीर सही है। पहले बाबा के पास गए थे, बाबा ने फैसला देने से इनकार कर दिया, फिर नाना की बारगाह में गए थे, नाना ने फैसला देने से इनकार कर दिया। ए अम्मी जान, आप आपके बारगाह में आए हैं, आप इससे फैसला लेंगे। हजरत फातिमा सोचने पर मजबूर, करें तो करें क्या, ये भी मेरा कलीजा का टुकड़ा है, ये भी कलीजा का टुकड़ा है, ये भी मेरा लाल है, ये भी मेरा लाल है, इसके हक में फैसला दे, इसके हक में फैसला दे। थोड़ी देर तवक्कुफ फरमाती है, थोड़ी देर ठहर जाती है। हजरत फातिमा तीन अशरफी निकलते हैं, निकलने के बाद कहते हैं मेरे लश्ते जिगर, ए जन्नती, ए जन्नत के सरदारों, मैं तुम्हारे हक में फैसला नहीं दे सकता, मेरे पास तीन अशरफी है, मैं तीनों को जो है आसमान में फेंक दूंगा, दो तख्ती दो तरफ रख दो, जिसके तरफ दो गिरेगा उसकी तहरीर सही है, जिसकी तरफ एक गिरेगा उसकी तहरीर खराब है। अल्लाह अकबर। दोनों भाई दोनों तरफ तख्ती रखे हुए हैं, तख्ती बिछाए हुए हैं। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तीनों अशरफी को आसमान में फेंकते हैं। फेंकने के बाद इमाम हसन ऊपर देख रहे हैं, इमाम हसन ऊपर देख रहे हैं, इमाम हुसैन ऊपर देख रहे हैं, फातिमा ऊपर देख रही है, लेकिन दो अशरफी दो तख्ती पर गिर जाती है। एक का कोई पता नहीं, फैसला उसी पर है, डिसाइड उसी पर है, एग्जाम का इम्तिहान उसी पे है, एक का कोई पता नहीं है, नाम निशान नहीं है। अल्लाह अकबर। एक का इंतजार हो रहा है। रब तबारक व तआला जिब्रील से कहता है, जिब्रील नवासे रसूल का मामला है, किसी का दिल नहीं उठना चाहिए, किसी की दिल में ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। ऐ जिब्रील चला जा, वो तीसरा अशरफी दो हिस्सा करके दोनों में गिरा दे। जिब्रील आते हैं, एक अशरफी को दो टुकड़ा करके दोनों में गिरा देते हैं। माँ फातिमा कहती है, बेटा हसन तुम्हारी भी तहरीर सही है, बेटा हुसैन तुम्हारी भी तहरीर सही है। पता चला, मालूम हुआ ये फैसला किसका था, रब का था। रब की बारगाह में वक़ा इमाम हुसैन का क्या था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसी नवासे रसूल को बेदर्दी के साथ करबला की सरजमीन पर भूखा प्यासा तड़पा करके मारा गया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सबसे ज्यादा अफसोस उस वक्त हुआ जब इमाम हुसैन के छोटे साहबजादे हजरत अली असगर, जो बोल नहीं सकते थे, जो खा नहीं सकते थे, जो पी नहीं सकते थे, जो चल नहीं सकते थे, जो झूठ नहीं पाते थे। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन की बीवी की पिस्तान से दूध खुश्क हो चुका, छोटा सा नन्हा सा बच्चा अली असगर भूख से अपने खुश्क जुबान होश को होठों में फिर रहा है। मतलब बच्चा कहता है, अली असगर कहता है, माँ मुझे प्यास लगी है, प्यास की शिद्दत है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काफी देर के बाद बाहर से आए। हजरत इमाम हुसैन की बीवी हजरत अली असगर को देते हैं और कहती है, ये छोटा सा लाल पानी की तलाश में है, पानी तलाश कर रहे हैं, मेरे पिस्तान से दूध खुश्क हो चुका है, मैं इसे नहीं पिला सकता, खुदारा फुरात के किनारे लेकर के जाए, कोई साहिब औलाद होगा, हो सकता है किसी के दिल में दर्द हो जाए। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन क्या करते हैं, उस छोटे से बच्चे के 6 महीना बच्चा अली असगर को गोद में लेते हैं। लेने के बाद फुरात की तरफ रवाना है। फुरात के करीब जाने के बाद कहते हैं, ए यजीदियो, तुम नाना का कलमा पढ़ चुके हो, आज अगर मेरे लाल के मुंह में एक कतरा पानी टपका दिया, बरोज़े महशर मैं तुमका हौज़े कौसर पिलाऊंगा। खुदा ने एक घोट पानी दे दो, एक घोट पानी दे दो। हजरत अली असगर है, आप भूख से काट रहे हैं, आपसे बिलबिला रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बातें हो रही थी, बातें चल रही थी। उमर ने पीछे से ऐसा वार दिया जो हजरत इमाम हुसैन को बाजू को छेद कर अली असगर के सीने में जाकर के लगा। अल्लाह अकबर। छोटा सा बच्चा के सीने में जब छोटा सा
جب تیر چگانا حضرت علی امام حسین کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی، آنکھ سے آنسو جاری ہے. اللہ اکبر. امام حسین کیا کرتے ہیں؟ اسی لال کو، اس چھوٹے سے بچے کو کیا کرتے ہیں؟ اسی تیر کو کھینچنے کے بعد آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں. بیٹا سو جا سو جا، تم کو دنیا کی پانی نہیں ملے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی تم کو حوض کوثر کا پانی پلائے گا. اللہ اکبر. امام حسین علی اصغر کو لے کر کے گھر کی طرف رواں دوا ہے. تمام خواتین انتظار میں ہے. شاید کہ علی اصغر کو پانی مل گیا ہے، شاید کہ اس کی پیاس بجھ چکی ہے، اس لیے کہ جب جا رہا تھا وہ رو رہا تھا، وہ چلا رہے تھے، وہ تڑپ رہے تھے، پانی کی پیاس کی شدت کی وجہ سے بلبلا رہے تھے. آج سکون ہو چکا ہے، اسی لیے کہ امام علی اصغر جب اب آ رہے ہیں وہ رو نہیں رہے ہیں، چلا نہیں رہے ہیں، وہ آرام سے سوئے ہوئے ہیں. تمام خواتین سوچ رہی ہے کہ میرے لال کو پانی مل گیا ہے. امام حسین خیمے میں آتے ہیں، اپنے کپڑے کو ہٹاتے ہیں اور خواتین سے کہتے ہیں اے